حضرت حود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے روضہ مبارک آپ لوگ زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس قبرستان میں 70,000 نبیوں کی قبر ہے، 70,000۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ اس قبرستان میں لگ بھگ 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا قبرستان جلدی آن کرو، ورلڈ میں پوری دنیا میں سب سے بڑا قبرستان جس کو وادی السلام کہا جاتا ہے، اس جگہ پر ہم موجود ہیں اور یہاں تقریباً جو 1,24,000 نبی گزرے ہیں ان میں سے 70,000 نبیوں کی قبر اس وادی السلام میں موجود ہے، اور یہ پورا تقریباً 30 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھیلا ہوا جناب ہود، جناب صالح نبی اللہ کی قبر بھی وہاں بھی ہم لوگ جائیں گے زیارت کرنے کے لیے۔ آئیے آپ لوگ۔ وہاں پہ کلچر ہے کہ قبروں پر لوگ اپنا لائک جن کی قبر ہے ان کا فوٹو لگا دیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ باکس کے اندر میں لاش ہے، کسی کا میت ہے، جو یہاں پہ دفنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں زیارت کے لیے اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے روضہ مبارک میں، اور وہاں سے ہم لوگ جائیں گے وادی السلام انشاءاللہ۔ آئیے آپ لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں وہاں پر۔ سارے لوگ ابھی نکل چکے ہیں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ آگے چل رہے ہیں۔ حضرت حود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے روضہ مبارک آپ لوگ کو زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو یہ دکھ رہا ہے نا گنبد دکھ رہا ہے وہاں، وہی حضرت حود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ، یہ وادی السلام ہے۔ سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ وادی السلام قبرستان میں ہم لوگ آ گئے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، لگ بھگ 30 کلومیٹر میں پھیلا یہ قبرستان ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان۔ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے 3 قبرستان میں دفن ہونے کی، ایک ہے وادی السلام، جنت البقیع اور جنت المعلی۔ یہ وادی السلام کے اندر ہم لوگ آ چکے ہیں، اور یہاں سے ہم لوگ حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا روضہ مبارک دیکھیں گے۔ کافی بڑا قبرستان ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور مولانا صاحب ہمارے آگے چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے قبریں، اور وہ سامنے جو گنبد دکھ رہا ہے، دا کنسٹرکشنز، وہ ہے نبی اللہ کا مزار۔ اس قبرستان میں 70,000 نبیوں کی قبر ہے، 70,000 علیہ السلام میں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ اس قبرستان میں لگ بھگ 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا قبرستان، جلدی آن کرو، ورلڈ میں پوری دنیا میں سب سے بڑا قبرستان جس کو وادی السلام کہا جاتا ہے، اس جگہ پر ہم موجود ہیں، اور یہاں تقریباً جو 1,24,000 نبی گزرے ہیں ان میں سے 70,000 نبیوں کی قبر اس وادی السلام میں موجود ہے، اور یہ پورا تقریباً 30 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حد نگاہ جہاں تک دیکھ سکتے ہیں، اس طرح پورا اندر طرح، یعنی دن بھر بھی آپ گھومیں گے ختم نہیں ہونے والا، بہت بڑا قبرستان ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی کا بھی یہاں انتقال ہوتا ہے تو لوگ یہاں پر لا کر دفن کرتے ہیں، اس لیے کہ زمین کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور اس کو یہاں دفن کر دیا جائے تو اسے فشار قبر نہیں ہوتا۔ تو پورا 30 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے جناب ہود، جناب صالح نبی اللہ کی قبر بھی وہاں بھی ہم لوگ جائیں گے زیارت کرنے کے لیے۔ آئیے آپ لوگ آگے بڑھیے۔ یہ پورا قبرستان ہے جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، دور دور تک پھیلا ہے یہاں پہ ایک اور بھی یہاں پہ کلچر ہے کہ قبروں پر لوگ اپنا لائک جن کی قبر ہے ان کا فوٹو لگا دیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ یہاں کا کلچر ہے۔ جو قبر ہے جو اس زمانے میں ہوئی، جب کیمرہ کا زمانہ ہے تو لوگ یہاں پہ اپنے لوگوں کی جن کا قبر ان کا فوٹو لگا دیا کرتے ہیں۔ یہاں کی کلچر یہاں پہ
अच्छा, हम लोग के साथ में एक शैतान भी है। हंसो, मकाम हंसो। है कब्रिस्तान में ये हम लोग यहाँ से आए हैं, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी दाखिल होने का। ये रास्ता हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र तक जाती है। इतना बड़ा कब्रिस्तान, यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर में लाश है, किसी का मैयत है, ये यहाँ पे दफनाने के लिए जा रहे हैं लोग। ऐसे दिन भर में कई सारे मैयत, मतलब जब मैं रहता हूँ यहाँ पे आधे घंटे के अंदर में 10-12 तो ऐसे मैं ही देख लेता हूँ। जब भी हरम में रहता हूँ सारे यहाँ पे जितने भी जिनकी भी मैयत होती, दूर दूर से लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं अपने अपने मैयत को, अपने मैयत मतलब अपने जानने वाले का मैयत को, अपने चाहने वाले का मैयत को यहाँ पे लेके आते हैं। ये आ गए हम लोग नबी अल्लाह का रोजा में, ये गेट है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। आइए अंदर चलते हैं अभी। ये भी ये रोजा हजरत हूद अलैहिस्सलाम का है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अभी मौलाना साहब यहाँ पे तकरीर करेंगे, बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुल मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़ार अल क़ुबूर कमन ज़ारनी। बयान के लिए तो कब्रिस्तान, इसे क्या कहा जाता है? वादी सलाम। पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, इसे क्या कहते हैं? वादी सलाम। तो अलग अलग लफ्ज़, एक है वादी, एक है क्या? अस्सलाम। वादी के क्या माने हैं? वादी के माना है जंगल, बयाबान, रेगिस्तान, या जो दो नहरों के दरमियान जो पानी बहता है उसको क्या कहते हैं? वादी। अस्सलाम क्या है? अल्लाह के एक नाम है, उन नामों में से एक नाम क्या? अस्सलाम। अस्सलाम को क्या माना है? अस्सलाम को क्या है? जो इंसान को ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से, आफात से, मुसीबतों से, आमान की हिफाजत। तो इसे वादिस सलाम इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी मोमिन की मौत होती है और जब उसे इस वादिस सलाम कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए तो वो जमीनी बलाओं से महफूज रहता है और आसमानी बलाओं से भी महफूज। इस वजह से क्या कहते हैं? वादी सलाम कहते हैं कि जहाँ 1,24,000 जो नबी गुजरे हैं उनमें से 70,000 नबियों की कब्र मुबारक इस वादी सलाम में मौजूद है। सामने रोज़ा मौजूद है। असल कब्र जो है जनाब हूद सालेह के अंदर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी इमारत बन रही है। काम जो है तो उनकी जगह को याद किया गया है ताकि लोग यही से क्या लिखा हुआ सलाम जाएगा और जनाब सालेह नबी अल्लाह की कब्र मुबारक इसी वादी सलाम में मौजूद है। इसी तरीके से जो आप लोगों ने ज़ियारत की मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में, वहाँ मौला अली की भी कब्र है और अबुल बशर हम जिनके औलाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम उनकी भी कब्र मुबारक उसकी मौला अली के रोज़े के अंदर मौजूद। आप देख लीजिएगा अक्सर किताबों में, यहाँ तक कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो भी इसी
مولا علی علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک موجود ہے، اسی کی جناب نوح علیہ السلام کی بھی قبر مبارک موجود ہے۔ اس سرزمین پر ہم یہ بیٹھے اسے کیا کہتے ہیں؟ وادی السلام۔ ایک زمانے میں یہاں بہت زیادہ زلزلہ آیا کرتا تھا، تو شمالی لڑکی میں جہاں اکثر میں تھائیلینڈ وغیرہ، ترکی میں ابھی کچھ دن پہلے زلزلہ آیا، ہندوستان میں نیپال وغیرہ میں زلزلہ آتا رہتا ہے۔ تو یہاں کے زمانے میں جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہوئے یہاں روزانہ زلزلہ آیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو قبیلہ تھا جسے قبیلہ مانکیا تھا، یہاں کے لوگ پریشان تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی سرزمین پر روزانہ زمین اٹھتا رہے تو لوگ پریشان ہوئے۔ لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا گزر اس وادی السلام کے زمین پر ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی تو نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام اسی زمین پر رک گئے۔ اس رات کو زلزلہ نہیں آیا۔ اب صبح جب یہاں پہ جو قبیلہ تھا جسے قبیلہ بانکیا کہا جاتا ہے، وہ جب صبح اٹھتے تو تعجب میں پڑے گا کیا بات ہے، اس سرزمین کو روزانہ زلزلہ آیا کرتا تھا، آج اس سرزمین کو زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے تو نوجوانوں کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ ہمارے درمیان کون سی ایسی شخصیت موجود ہے، کون اللہ کا ایسا ولی موجود ہے، کون نبی موجود ہے کہ جس کے قدم مبارک کی وجہ سے سرزمین کو زلزلہ نہیں آیا۔ نوجوان پہنچے، قبیلے والے پہنچے تو پتا چلا کہ یہاں اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی وجہ سے اس سرزمین کو زلزلہ نہیں آیا۔ سب لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ قبیلے کا جو سردار تھا بانکیا قبیلے کا، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پہنچے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم سب قبیلے والوں کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان اور ایک نام چاہیے تاکہ ہم زلزلے سے محفوظ رہیں۔ نبی اللہ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی فرمائش ہے تو میں اور ایک رات یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس رات کو اسی سرزمین پر رکے، اس سرزمین کو زلزلہ ملا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ قبیلے کا سردار سب لوگ آپس میں شروع کرنے لگے، کیوں نہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا جائے کہ آپ ہمیشہ کے لیے سرزمین پر رہ جائیے تاکہ ہم لوگ ہمیشہ کے لیے زلزلے میں محفوظ رہیں۔ لہٰذا تمام لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمائش کی کہ اللہ کے نبی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ اسی سرزمین پر رہیں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے زلزلے سے محفوظ رہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا دیکھیے میں تو یہاں مسافر ہوں، چند دنوں کے لیے آیا، اس کے لیے میرا کام گزارش تھا، میں لوگ اللہ کی طرف گزارش کی مختلف جگہوں پر پوری دنیا میں جانا پڑتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے سرزمین پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس زلزلے سے، اس پریشانی سے نجات پائے، اس سرزمین کو مجھے دیں، میں اس سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں، اس زمین کو مجھے بھیج دیجیے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے جو لوگ تھے، قبیلے کے جو سردار تھے، ایسی بات ہے کہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فری میں سرزمین کو لے لیجیے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری جو حیثیت ہے، میری جو میں جتنا دے سکتا ہوں اتنا ہی دے کہ میں اس سرزمین کو خرید لوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری جو حیثیت ہے، میری جو اوقات ہے، میں جتنا دے سکتا ہوں اتنے میں اس سرزمین کو لے کے میں فری میں نہیں لوں گا۔ اس زمانے میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کتنے میں اس سرزمین کو خریدا؟ بتائیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں، اپنے زمانے میں، یہ پوری وادی السلام کی سرزمین پورا 30 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، تو روایتوں کے جملے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں 7 بھیڑ کے عوض اور 4 گدھے کے بدلے بھی پوری وادی السلام کی زمین کو جب زمین خرید چکے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، اللہ کے نبی تو گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ آپ اس سرزمین کو لے کر کیا کریں گے؟ یہ تو ریگستان ہے، نہ یہاں گھاس موجود ہے، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، ہمارے جانور کو کہاں کریں گے؟ گھاس کہاں کھائیں گے؟ ہم سب تو مر جائیں گے۔ تو ترنت جناب ابراہیم علیہ السلام نے خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی سرزمین سے 70,000 انبیاء محشور ہوں گے، اور وہ 70,000 انبیاء 70,000 لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور ان 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک انسان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ یہ اور بھی زیادہ 70,000 لوگوں کی شفاعت۔ یہ وہ سرزمین
उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम का जमाना आया, रवायत में मिलता है जनाब इब्राहिम का जमाना गुजरा, तो साबित गुलामी सफर रहा। फिर उसके बाद जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम का जमाना आया, उनके पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इसी वादियो सलाम के सरजमीन में दफन किया गया। रसूल इस्लाम है, उनके बाद बैठ पे इल्म होता है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला सब सारी चीजें उन्होंने पहले आपको कुफा में शहीद किया जाएगा, लेकिन आपकी कब्र इसी वादियो सलाम मौला कायनात अक्सर बेशतर इस सरजमीन पर आते थे। इस सरजमीन को देख कर खुश होते, फातिहा पढ़ा करते और मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में था कि आपने अपने जमाने में फिर इस सरजमीन को 40,000 दिरहम या दीनार में खरीदा। तो इस वक्त हम इस सरजमीन पर मौजूद है। इमाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हदीस में बयान किया कि मंज़ार कुबूर का मंज़ार है, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि कब्रिस्तान जाए और वहां जाने के बाद अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़े। हर इंसान की जिम्मेदारी। अगर हम अपने आबा व अजदाद के कब्र पर नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे मरने के बाद हम ये इल्तिजा ये तमन्ना अपने दिल पर ना रखें कि हमारे बच्चे भी हमारे कब्र पर आए। लिहाजा पहले हमको खुद जाना पड़ेगा, हमें खुद दिखाना पड़ेगा। हम कब्रिस्तान जा रहे हैं तो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर जाए, उनको बताए ये तुम्हारे दादा की कब्र, ये पढ़ाई तुम्हारे पिता की कब्र, ऐसे उसके दिल में जो कुछ पैदा हो वो वहां पर जाए, वहां जाकर पहुंचे। लिहाजा अगर इंसान कब्रिस्तान जा सकता है, चाहे वो अपने गांव का कब्रिस्तान हो, शहर का कब्रिस्तान हो, देहात का कब्रिस्तान हो, तो वहां जाकर वो एक मर्तबा सूरह फातिहा और इसका कितना ज्यादा सवाब है इमाम अबू बकर काज़िम अलैहिस्सलाम अपनी हदीस में बयान करते हैं। कब्रिस्तान जाने की कितनी ज्यादा फजीलत हम हर इंसान से बहुत बेहतरीन वक्त जो कब्रिस्तान जाने का बयान किया गया हदीस रवायत में, जुमे के दिन नमाज सुबह के बाद सूरज निकलने से पहले ये जो है बहुत ही फजीलत का वक्त है। इंसान जुमे के दिन नमाज फजर के बाद सूरज निकलने से पहले कब्रिस्तान जाता है तो इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। और सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जाने की कितनी ज्यादा फजीलत इमाम फरमाते हैं कि मंज़ारल कुबूर का मंज़ार है। अगर कोई इंसान कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ता है तो गोया उसका सवाब इस तरीके से है कि उसने काज़मैन में मेरी ज़ियारत। हम कहाँ जा रहे सूरह फातिहा पढ़ने के लिए? हम कब्रिस्तान जा रहे अपने मरहूमीन को बख्शवाने के लिए, लेकिन हमें सवाब मिल रहा है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ। इसी तरीके से आप देखते हैं हिंदुस्तान के कितने सारे मकामात में इसके बारे में बयान किया जाता है। इमाम मौला अली की इशारत मौजूद है। आज उन जगहों को इमाम बारगाहों की शक्ल में तब्दील कर दिया गया, जो वहां पर जाते हैं अपनी हाजतें, मुरादें, तमन्नाएं वहां से लेकर आते। लेकिन कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसके बारे में इमाम फरमाते हैं अगर कब्रिस्तान जा रहे हो तो भाई हमारा अक़ीदा क्या है कि मरने के बाद जो है कब्र में मौला कायनात आते हैं, मदद करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। तो लिहाजा हम इस तसव्वुर के साथ कब्रिस्तान के जाएं कि वहाँ रसूल इस्लाम आते हैं, वो मौला अली आते हैं, वहाँ इमाम हसन आते हैं, वहाँ इमाम हुसैन, इतने सारे कदमों के निशानात मिले। तो लिहाजा इस सरजमीन पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसे वाजिब सलाम कहा जाता है। अल्लाह के दो नबी जनाब हूद और जनाब सालेह नबी अपने जमाने के आदमी कदर जिनके जमाने के लिए जनाब हूद और जनाब सालेह के जमाने के लोग 100 गज के लोग हुआ करते थे। जमाने 100 गज कितने लंबे चौड़े ताकतवर के पहाड़ को अगर मार दो पहाड़ बेहतर नहीं हो, पहाड़ को अपने हाथों से काट कर घर बनाया करते। जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक तब्लीग लोग ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। जनाब सालेह नबी अल्लाह ने कई साल तक उन्होंने तब्लीग की, लोग ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। क्या कहने लगे ठीक है हम ईमान लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है जिसका नाम कायबा है, उसे हुक्म दे कि वहां से एक ऊँटनी पैदा हो कि जिसके सर जो है वो क्या कलर के हो, पेशानी के बाद उसके सुर्ख हो, एक मील लंबी ऊँटनी हो और इतना दूध दे वो कि पूरे गांव के लोग उसके दूध से ठहरा हो।
और पैदा होने के बाद वो एक बच्चा भी दे। तो जनाब साले नबी अल्लाह मुसल्ले पर बैठे अपने हाथों को खुदा आलम की बारगाह में बुलंद थे। पालने वाले ये कौन ईमान लाने के लिए तैयार, लेकिन उनकी ये जल्द शरायत जो सूरत ईमान लाने। तो बहरहाल उन्होंने दुआ की, परवरदिगार ने कहा ठीक है, अगर ये लोग ईमान लाने के लिए तैयार तो हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद पहाड़ की आवाज आनी, इस तरीके से जब माँ जो प्रेग्नेंट होती है, जो बच्चा पैदा होता है, किस तरीके से वो औरत जो चिल्लाती है, तो वहां से उसी तरीके से पहाड़ की आवाज आने, वहां से ऊंट का सर निकला, ऊंट बाहर आया, बाहर आने के बाद घास चलने लगा, लोग ताज्जुब में पड़ गए। 1 मील लंबी दूरी, उससे बड़ा जानवर उस जमाने में कोई नहीं। जितने भी छोटे छोटे जानवर थे, गाय बैल भैंस, सब उससे डरते थे। जाहिर सी बात है, इतनी लंबी ऊंटी हो। फिर कौम आकर कहने अल्लाह के नबी, हम ये चाहते, हमारी ये शर्त थी कि पैदा होती है एक बच्चे, और बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे भी मां के साथ करने लगे। और इतना वो दूध दिया करती थी ऊँटनी कि पूरे गांव के लोग ऊँटनी के दूध को पिया भी करते थे, भेजा भी करते थे, तिजारत किया करते थे। यहाँ तक के सब लोग मालदार हो गए। उसके बालों को बेच के, तो जमाने में वही तिजारत था, उसके बालों को बेचना, दूध को बेचना। लेकिन नबी अल्लाह साले ने कहा, याद रखना, अगर किसी ने भी इस ऊँटनी को या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आते ही रहेगा, कोई उसका नुकसान ना पहुंचे। तो वहां पहले से लोग साहिब इस्तिताब दौलतमंद, उनके दिल में हसद पैदा हो गई, ये हमारे दिल में कौन से होता है, अब सब अमीर हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो उनके दिल में हसद पैदा हुआ, पिलाने करने के तरीके से ऊँटनी को उसके बच्चे को मदद कर दिया। तो नबी अल्लाह साले ने पहले से कह दिया, याद रखना, अगर किसी ने इस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया अल्लाह की तरफ से अज़ाब आती है। बहरहाल कुछ लोगों ने साजिश की कि जैसे ही ऊँटनी का बच्चा वहां पानी पीने के लिए गया, अपने सर को कुएं में डाले तो फौरन तीर के जरिए से, तलवार के जरिए से उस ऊँटनी के ऊपर हमला कर दिया। तो जैसे उस ऊँटनी अपने सर को कुएं में डाला, तब वो तलवार के जरिए से, नेज़े के जरिए से, छुरी के जरिए से उस ऊँटनी को इतने, उसके बच्चे के सामने इतने टुकड़े कर दिए, उसके गोश्त को लेकर अपने घर लेकर गए पकाने के लिए, खाने के लिए। और वो ऊँटनी के बच्चे इन तमाम मंजर को अपनी आंखों से देखे। फौरन नबी अल्लाह साले की खिदमत में ऊँटनी के बच्चे पहुंचा, 3 मरतबा उसके खुदा को बुलंद किया, 3 मरतबा रोते हुए जनाब साले ने कहते थे 3 मरतबा अपनी आवाज को बुलंद किया। अब नबी अल्लाह साले ने कहते थे, याद रखना, कौम को कोई बचाने वाला नहीं। हमने मना किया था कि ऊँटनी को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्होंने कत्ल कर दिया, उसके गोश्त को टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया और पूरी की पूरी कौम हलाक हो, पूरी कौम हलाक हो। लेकिन नबी अल्लाह साले ने मना किया था, खबरदार उस ऊँटनी को कुछ नुकसान मत हो। लेकिन इस सरजमीन पर बैठा हुआ है, रवायतों में नबी अल्लाह साले ने ऊँटनी और मौला कायनात में चंद शबाहतें, चंद मिसालें, चंद मुताबिकत पाई गई। ठीक है, नबी अल्लाह साले की जो ऊँटनी थी उसको भी आयतुल्लाह कहा जाता है, इसलिए को आयतुल्लाह का क्या मानेगा, अल्लाह की एक निशानी। इसी तरीके से मौला अलैहिस्सलाम को क्या कहते थे, आयतुल्लाह, अल्लाह की एक निशानी। नबी अल्लाह साले की ऊँटनी कहाँ पैदा हुई, पहाड़ के दरमियान से, जो पूरे पत्थर का बना हुआ। इसी तरीके से मौला कायनात के बारे में खाने काबा में पैदा हुई, जो किस चीज से होना हुआ, पत्थर का बना हुआ। ये शबाह नाक़ा साले के बारे में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मौला अली के बारे में फरमाया कि दुनिया का सबसे खबीस तरीन इंसान वो होगा अली जो नाक़ा साले को कत्ल करेगा और दुनिया में करेगा। लिहाजा मौला कायनात को जिस औरत के जरिए से, साजिश के जरिए से कत्ल किया गया, उसका नाम भी पत्तामा बयान किया जाता है। और नबी अल्लाह साले के ऊँटनी को जिस औरत के जरिए से उसको तय किया गया, दिवस के औरत का नाम भी पत्तामा बयान किया। इसी तरीके से नाम नबी अल्लाह साले की ऊँटनी को दिवा करने वालों के बारे में बयान किया जाता है कि वो गलत जिना के जरिए से पैदा हुआ, नाजायज औलाद था।
इसी तरीके से मौला कायनात नबी सल्लल्लाहु को जो मस्जिद कूफा में तय करने वाले इसके बारे में बयान है फर्स्ट कदर होता है जैसे बड़े बड़े को सुना जाएगा ना ये तो नबी या मासूम को ऐसे ही लोग कत्ल कर सकते हैं इसके मसले अच्छे ना हो। एक औरत मुजाबिहत जिस तरीके से नबी अल्लाह साले के नाटके को विवाह किया गया और बाद रवायतों के मुताबिक उसके बच्चे को भी पकड़ा गया, उसके बच्चे को भी जमा कर दिया गया, उसके बच्चे जो है पहाड़ की बस्ती पर चला गया और वहीं तक नहीं वो। इसी तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम को भी मस्जिद कूफा में ज़रबत लगी, वहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई और उसके बाद 10 मुहर्रम हराम को वाक़ई करबला में इस तरीके से ऊँटनी के बच्चे को विवाह किया गया। इस तरीके से मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला के मैदान में उनके बच्चों को जिस तरीके से पानी के लिए जिबा किया गया, किस तरीके से अबू के सीने पे बत्ती लगी, किस तरीके से कासिम का लाशा पावन किया गया, किस तरीके से आलमदार करबला के बाजू कटे, किस तरीके से दीगर शहदाए करबला को शहीद किया गया, किस तरीके से लाशों के ऊपर जनाजे दौड़ाए गए। नबी अल्लाह हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत कर ली है। अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकले हैं, यहाँ से अभी हम लोग आगे कब्र तक कुछ कब्रिस्तान की कुछ दूर तक जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी बहुत ज़ियारत करने के लिए। वैसे भी 30 किलोमीटर लंबा कब्रिस्तान है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ये पूरा कब्रिस्तान घूम पाए, यहाँ की हर कब्रों को ज़ियारत कर पाए। तो यहाँ पे हमने 2 रकात नमाज अदा की यहाँ पे और तमाम कब्रों के लिए दुआएं भी की है और यहाँ के हाजिरी के अल्लाह ताला हम सब पर फरमाए और जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मौला उन सबको यहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन।